Hello students, how are you? Today once again I am here to welcome you all in this online class which is especially run for the students of Cambridge International School, but apart from Cambridge International School, students of other schools can also join the class. And the current topic we are going through, the topic is adjustment in closed account, or you can say past adjustment. In past adjustment, some of the questions we have discussed and some of the types of questions you can say we have discussed. But today I think it will be the last class for this topic. Today first of all we will discuss about adjustment in closed account when profits distributed in wrong proportion. Till now we have seen that some partners distribute the profits, sometimes partners distribute the profit without considering the agreements which have been made by the partners. Means if the partners have made an agreement over the interest on capital or interest on drawing or salary to any partner or commission to any partner, if before providing, or you can say if partner distribute the profit without providing these agreements, then in that case how can we pass the adjustment entry and how can we prepare the adjustment table? Till now we have seen that, but today we will discuss about the adjustment entry when profits distributed in wrong proportion. Mean when they distribute the profit, in that case there may be two types of question. Once only profit will be distributed in wrong proportion, or another type of question there may be with the proportion with the profit distribution, that means wrong distribution of profit. There may be again some mistakes like previous one, the mistake which we have seen till now, that if interest on capital was to be provided but it was omitted to be provided, as in the same case if any salary was given to any partner but before providing that salary partner distributes the profit. So in the same case again here questions may arise that partners distribute the profit without considering the agreement, and when they will distribute the profit, even they will distribute the profit in wrong proportion. ठीक है, यहाँ पे दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या तो सिर्फ प्रॉफिट बटने में ही मिस्टेक हो जाए, मतलब जितना एग्रीमेंट्स किया गया होगा सारे एग्रीमेंट प्रोवाइड करने के बाद जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज दैट देयर आर टू पार्टनर्स, ठीक है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल but they distribute their profit in 3:2 ratio, but their ratio was equal. तो 3:2 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट मीन्स वो रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया. इसी तरीके से मैंने बताया दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो हो सकता है कि प्रॉफिट तो रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो, साथ में उसके साथ ये भी मिस्टेक हो जो अभी तक हम पीछे करते आए हैं. जैसे मान लो जो भी एग्रीमेंट की चीजें प्रोवाइड करना है उसमें कुछ एग्रीमेंट की चीजें भूल जाए और वो सारी चीजें भूलने के बाद प्रॉफिट को भी रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. तो याद रखना कि when there will be distribution of profit in wrong proportion, first of all the concept you have to remember, that is remaining profit. In that case when profit will be distributed in wrong proportion, remaining profit will come into the picture. ठीक ना, we will have to calculate the remaining profit. अब ये क्या remaining profit होता है इसको मैं भी बताऊंगा. Suppose that if a firm is getting profit of rupees 1,50,000, okay, and 1,50,000, and salary to partner. पार्टनर एक जनरल क्वेश्चन है, नाम हम नहीं लिख रहे हैं, कोई भी पार्टनर हो सकता है, ए बी सी, ठीक है, राम श्याम मोहन, एनी पार्टनर. सैलरी टू ए पार्टनर सपोज 30,000 per annum, and in last you are given the information that and their PSR is 1:1. if there are two partners A and B, their PSR is 1:1. In that case we will get the information that they have distributed the profit in the ratio of 4:2. Suppose
they distributed the profit in the ratio of 4:2. Okay. In this ratio, they distributed the profit, and in the same case, you are also getting information that without providing this salary to the partner, this whole amount 1,50,000 was distributed among the partners in the ratio of 4:2. तो यहाँ पे मिस्टेक क्या क्या हो रही है? सबसे पहले तो एक पार्टनर को सैलरी 30,000 की देना था, वो भूल गए, यानी ओमिशन की मिस्टेक है, जैसे पीछे होती रही है। इसी तरीके से सेकंड मिस्टेक ये हुआ कि चलो ठीक है, ये 30,000 अगर नहीं भी दिया था तो 1,50,000 को इक्वल जो इनका पीएसआर था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का बजाय यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ कि जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ 4:2, जबकि होना कितना चाहिए था? 1:1। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीधे सीधे हमारा क्या हो रहा है? यही केस बन रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। ठीक है, रॉन्ग प्रोपोर्शन में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इसके लिए हमको कैसे करना होगा? अगेन प्रोसीजर सेम होगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एडजस्टमेंट टेबल, वी विल प्रिपेयर द एडजस्टमेंट टेबल। एंड एडजस्टमेंट टेबल में सबसे पहले मैंने चीज बताया था, जो चीज हम भूल गए, मीन्स द आइटम विच वी हैव ओमिटेड टू प्रोवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आइटम विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सैलरी पार्टनर्स की भूल गए, तो सबसे पहले पार्टनर की सैलरी प्रोवाइड करेंगे, और पार्टनर की सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सबको पता होना चाहिए कि किसी भी पार्टनर को कोई भी आइटम अगर प्रोवाइड किया जाएगा, मिलेगा अगर पार्टनर्स को, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये सैलरी पार्टनर को, जिस पार्टनर को मिलना होगा उसको क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमने ए और बी लिया है तो मान सपोज करते हैं कि ये जो पार्टनर बी है, बी इज गेटिंग सैलरी, ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। यहाँ पे सीधे हमको क्या करना होगा? अब हम वही काम करेंगे, पीएस पहले सैलरी प्रोवाइड करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसके बाद सैलरी प्रोवाइड करने के बाद मैंने बताया था कि जितना पार्टनर्स को क्रेडिट होता था वही फर्म का क्या होता था? शेयर ऑफ लॉस मैंने बताया था, क्योंकि पार्टनर्स को जब प्रोवाइड करेंगे तो फर्म का प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो वो फर्म का एक तरीके से लॉस होगा, और उस शेयर ऑफ लॉस को मैंने उनके पीएसआर में डेबिट करने को बताया था। ठीक है, अभी तक तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया, बट यहाँ पे मिस्टेक तो ये भी है। तो अब यहीं पे सबसे पहले सैलरी प्रोवाइड करेंगे 30,000 की, देन उसके बाद हम रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। याद रखना, जब प्रॉफिट रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट वाज 1,50,000, 30,000 वाज गिवन टू बी एज ए सैलरी। तो आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस सैलरी, नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स? तो 1,50,000 माइनस 30,000, दैट मीन्स 1,20,000। सो नाउ दिस 1,20,000 मीन्स रिमेनिंग प्रॉफिट, ये सैलरी प्रोवाइड करने के बाद 1,20,000 profit will be distributed in their correct ratio. That means 1:1. Okay, 1,20,000 will be distributed in their correct ratio 1:1. And at last, मैंने भी बताया कि 1,50,000 was provided in the ratio of 4:2. ये मिस्टेक हुआ था कि पूरा प्रॉफिट प्रोवाइड कर दिया गया था 4:2 में, जो कि रॉन्गली प्रोवाइड किया गया था ना। ऐसा करना तो था नहीं, पहले तो 1,50,000 को पूरा नहीं प्रोवाइड करना था एज ए प्रॉफिट, दूसरा कि उनको 4:2 में नहीं करना था। तो इसका मतलब पहले अगर पार्टनर्स को प्रोवाइड किया गया होगा तो ऑलरेडी पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो गया होगा? क्रेडिट किया जा चुका होगा, क्योंकि जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, जैसे ए है तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ऑलरेडी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो चुका है उतने अमाउंट से। तो अब हम क्या करेंगे? वही रॉन्ग प्रोपोर्शन में उस प्रॉफिट को वापस से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, यानी 1,50,000 जिस रेशियो में क्रेडिट हुआ होगा वापस से हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, so now to understand the topic we are going to solve one exercise question of your book, and book is S.C. Sharma, and question number is exercise question number 42A. Okay, question 42A. Those who are not having S.C. Sharma book, just go through the question and take the screenshot. Okay, question is P, Q and R are partners having fixed capital of rupees 60,000, rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. They share profits in the ratio of 3:2:1. Their PSR is given
3:2:1 फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। कह रहा है कि जो एडजस्टमेंट थी वो ओमिट कर गया रिकॉर्ड करने में, यानी भूल गए। क्या क्या भूल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज P ₹700, Q ₹500 एंड R ₹300। मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है। सैलरी टू R वाज ₹3,000 पर एनम एंड Q वाज ₹300 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ होगी तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर एनम दिया होगा तो सिंपली वही लिख देंगे। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर दीज एडजस्टमेंट वाज ₹24,600 एंड इट वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। ध्यान रखना P, Q and R, ओके। क्वेश्चन नंबर 42A, क्वेश्चन नंबर 42A, P, Q, R, their PSR is 3:1, 3:1, that is PSR, okay, and their capital was 60, 50 and 40,000, 60, 50 and 40,000 कैपिटल, ओके। कह रहा है कि एट लास्ट नेट प्रॉफिट वाज ₹24,600 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट रॉन्गली, क्योंकि ये गलती से हुआ PSR इनका 3:2:2, तो लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड equally, that means that is if there are three partners, 1:1:1, that means 1/3, 1/3 and 1/3. Okay, now see how adjustment table will be prepared. Adjustment table. Three partners are there, so then there will be 4 main columns. P, Q, R and last one is for total. मैंने क्या बताया? सबसे पहले जो चीज एग्रीमेंट से भूल गए वही प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर कितना इंटरेस्ट? 5%, तो 5% इस पे 60,000 पे 5% निकालेंगे तो 3,000। क्यू का कैपिटल है 50,000, इस पे 5% निकालेंगे 2,500। इन द सेम केस 40,000 पे निकालेंगे आर के लिए 2,000। नाउ दिस टोटल, तो 3 to 5,000, 5 to 7, 7,500, ओके। अब देखते हैं कुछ और है क्रेडिट साइड में जो चीज भूल गए थे। मैंने बताया था कि अगर क्रेडिट हम पहले लिख रहे हैं तो और भी देखेंगे कि और कोई आइटम ऐसा है जो क्रेडिट करने के लिए भूल गए, तो एक साथ लिखेंगे क्रेडिट वाला और डेबिट वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट होगा ना। पहले देखते हैं कि क्रेडिट वाला कोई और छूटा है क्या। कह रहा है सैलरी टू आर एंड क्यू, आर और क्यू को सैलरी जब मिलेगी तो दैट मीन्स उसको कैपिटल में क्रेडिट होगा। तो पहले सैलरी लिख लेते हैं, सैलरी। पी को कोई सैलरी नहीं है। क्यू इज गेटिंग सैलरी 300 पर मंथ, 300 पर मंथ, 300 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 3,600। इसी तरीके से आर इज गेटिंग सैलरी 3,000 पर एनम, तो आर का 3,000 सैलरी, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 6,600, ओके। इसी तरीके से अब कोई ऐसा क्रेडिट वाला नहीं भूले। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूले तो वो डेबिट होगा, इसको लिखेंगे क्रेडिट। अब हम क्या करेंगे, जब एक से ज्यादा क्रेडिट हो जाए तो मैंने कहा था टोटल क्रेडिट पहले लिख लेना, उसके बाद डेबिट करना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल क्रेडिट, लिखेंगे टोटल क्रेडिट,
3000, ओके, एंड हाँ टोटल कर लेंगे, ओके। नाउ दिस टोटल, ओके, नाउ दिस इज टोटल क्रेडिट। अब क्या भूल गए डेबिट करने में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी सब कुछ वही सेम प्रोसीजर चल रहा है जो पहले चलता था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सीधे अमाउंट कैलकुलेट करके दिया हुआ, पी के लिए 700, ओके। इसी तरीके से क्यू के लिए 500, ओके, 500, एंड फॉर आर इट इज 300, तो 1500। नाउ वन क्रेडिट वन डेबिट, तो नेट में निकालेंगे, नेट में क्या आएगा? क्रेडिट ही बड़ा दिख रहा है तो नेट क्रेडिट आएगा, ठीक है। इसको यहां से ऐसे करते हैं, नेट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ 3000 में से 700 गया तो ये क्या आएगा हमारा 2300, 5600, ये हमारा आ जाएगा 4700, and again this 12,600, ठीक है। नाउ इट इज नेट क्रेडिट। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था कि जब प्रॉफिट रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, ये करते थे, नेट में हमारा जो आता था, नेट में क्रेडिट आता था, तो यही टोटल अमाउंट शेयर ऑफ लॉस होता था, उसको उनके करेक्ट पीएसआर में क्या करते थे? डेबिट कर देते थे, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि अगर नेट में डेबिट आएगा तो दैट विल बी शेयर ऑफ गेन फॉर द फर्म, पार्टनरशिप फर्म, और उस जो नेट में डेबिट आता था उस टोटल अमाउंट को उनके पीएसआर में क्या करते थे? सारे पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते थे। बट यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे भी, ठीक है। जब भी इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1 में, ये इनका पीएसआर था, बट इट वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। तो इस केस में मैंने बताया था कि हमको सबसे पहले क्या ध्यान दिमाग में रखना है, अगर प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। यानी सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद अब कितना फर्म में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग नोट बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना था, ये हम क्या निकाल रहे हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट टोटल था 24,600, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने सब कुछ ऐड लेस करने के बाद देखा नेट में क्रेडिट कितना है? 12,600। तो नेट में क्रेडिट का मतलब वो क्या है? फर्म का क्या एक तरीके से लॉस है, नेट क्रेडिट। तो माइनस करेंगे, लेस कितना है? 12,600, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता, ठीक है, प्रॉफिट से सैलरी माइनस होती, इसी तरीके से इसी प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 1500 ऐड होता। तो हमने सारा नेट फिगर निकाल लिया हुआ है कि इतना 12,600 अगर हम माइनस कर दे एक बार में तो ये सारी एडजस्टमेंट ऊपर की एक बार में क्लियर हो जाएगी। तो लेस करेंगे ये हमारा, ठीक है, दैट इज 12,000, ठीक है, 12,000। अब इस 12,000 को क्या करेंगे? उनके करेक्ट पीएसआर में क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे? प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलता है तो क्या होता है? क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को मिल रहा है। तो 12,000 को इनके करेक्ट 3 to 6 यानी 6 से डिवाइड करेंगे। ए के पी के लिए कितना बनेगा? 3/6, क्यू के लिए 2/6, आर के लिए 1/6। तो एक बार में हम 6 से टोटल इसको डिवाइड कर दें तो ये 2,000 आया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000, 2 2 are 4,000 and 2 1 are 2,000. Now this remaining profit, that is 12,000. 12,000. Okay.
यानी इस स्टेप में अभी तक क्या स्टेप आया है, सिर्फ सारा स्टेप हमने सेम किया है, बस क्या किया, इसमें जो नेट क्रेडिट आया था उसको शेयर ऑफ लॉस मान के डेबिट नहीं किया गया, बल्कि जो प्रॉफिट गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था अब उसको ठीक कर रहे हैं, यानी जो चीज प्रोवाइड करना था प्रॉफिट में से प्रोवाइड कर दिया गया। अब जो नेट प्रॉफिट 12,000 बच रहा था जो कि वाकई डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में, उसको करेक्ट रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट कर लेंगे, यानी क्रेडिट का दो, एक से ज्यादा आइटम गया, दो क्रेडिट हो गया तो लिखेंगे टोटल क्रेडिट 8300, 9600, हमारा हो गया 6700। ओके, और ये हमारा पूरा प्रॉफिट हो गया, यानी 24,600। ओके, नाउ दिस होल अमाउंट, यही ना हुआ था कि विदाउट प्रोवाइडिंग दिस थिंग्स टोटल प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, पूरा प्रॉफिट बट गया था, जो 24,600 का प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल रहा है वो पूरा प्रॉफिट गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यानी गलत रेशियो में क्रेडिट हुआ था। तो जो गलती हुई थी, गलती से जो क्रेडिट हुआ था उतने अमाउंट से ठीक क्या करेंगे, सारे पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट कर देंगे न्यूट्रल इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसको ऑलरेडी प्रॉफिट बेनिफिट दे दिया गया, अब उससे वो बेनिफिट क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उनका गलत प्रोपोर्शन में क्रेडिट हुआ था वही रॉन्ग प्रोपोर्शन में टोटल प्रॉफिट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, क्योंकि गलती से क्रेडिट हुआ था, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट करेंगे। ठीक है, अब ये कितना था, 24,600 टोटल प्रॉफिट इक्वल रेशियो में, जिस रेशियो में गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी में, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, 1/3 करेंगे, तो ये हमारा 8,200 8,200 8,200। इसको लिखेंगे 8,200 8,200 8,200, टोटल हमारा वही है 24,600। अब इससे कोई मतलब नहीं है, मेन इसमें हम देखेंगे नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट जो कि वही हमारी एंट्री का वर्किंग नोट होगा मेनली। यहाँ क्रेडिट 8,300, डेबिट 8,200, दैट मीन्स क्रेडिट साइड बड़ा है, बैलेंस की क्या आएगा, क्रेडिट, पहले लिख लेंगे क्रेडिट। ठीक है, 100 रुपीज का क्रेडिट आएगा। क्यू के लिए क्या है, 9,600 क्रेडिट साइड, 8,200 डेबिट साइड, अगेन इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, 1,400। ठीक, इसका 6,700 और इसका हमारा 8,200, तो यानी डेबिट साइड इसका बड़ा है, तो इसका बैलेंस क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, ये नीचे में से माइनस करेंगे 0 1,500। ठीक है, 1,500। अब इसको आंसर को हम चेक करते हैं। ठीक है, हमारे आंसर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आर का कैपिटल डेबिट होना चाहिए, इसी तरीके से पी 100 रुपीज से क्रेडिट होगा और क्यू का कैपिटल जो है 1,400 से क्रेडिट होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे ऊपर, तो 42A में क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू एंड आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। जब वर्ड फिक्स्ड कैपिटल लिखे तो मैंने बताया था कि सारा के सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पार्टनर्स की किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, करेंट अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उनका जो कैपिटल होगा, या इसी तरीके से कोई एडिशनल फर्दर कैपिटल होता है या कैपिटल की ड्राइंग होती है, दैट थिंग्स ओनली वी विल रिकॉर्ड, and all the other things, partner salary, partners profit, partners commission and other things will be recorded in their current account। तो इसीलिए एडजस्टमेंट एंट्री भी किससे, करंट अकाउंट से करेंगे। तो देखो आंसर इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है। डेबिट क्या है, आर्स करंट अकाउंट, डेबिट हमारा है आर्स करंट अकाउंट 1,500 से डेबिट है। इसी तरीके से टू पीस करंट अकाउंट 100 रुपीज, टू क्यूज करंट अकाउंट 1,400 रुपीज। ठीक है, हम एंट्री पास कर लेंगे, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल, टू पीस करंट अकाउंट, टू क्यूज करंट अकाउंट, जिसके सामने जो बैलेंस है वो बैलेंस लिख देंगे। जर्नल एंट्री यू कैन पास। ठीक है, तो ये हमारा सीधे सीधे ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमारा ओमिशन भी था, मींस एग्रीमेंट प्रोवाइड करना भी भूल गए थे। दूसरा मेजर मिस्टेक क्या हुआ था कि प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल। अभी तक का जो हमने क्वेश्चन किया प्रॉफिट के बारे में, कोई बस सीधे बोलता था
कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग और विदाउट कंसिडरिंग द एग्रीमेंट। तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि पार्टनर्स ने करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बस क्या था, प्रोवाइड करना बोल गए थे एग्रीमेंट्स को, लेकिन यहाँ पे बोले एग्रीमेंट्स को भी प्रोवाइड करना बोले, इसी तरीके से उनको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबकि पीएसआर उनका फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 3:2:1। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो चीज भूल गए होंगे, जो चीज प्रोवाइड करना उसको क्रेडिट करेंगे, जिसको लेना होगा पार्टनर से उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, यानी उस प्रॉफिट में से जो जो चीजें उनको क्रेडिट करना होगा पार्टनर्स को वो सब माइनस करेंगे, और जो पार्टनर से लेना होगा यानी डेबिट जो किया गया होगा, फर्म का गेन होगा, वो 1500 इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल हमने ये सब करने के बाद यहाँ पे नेट अमाउंट निकाला था, तो 12,600 चूंकि क्रेडिट था तो इसलिए हमने माइनस किया। डेबिट होता नेट में तो इसको प्लस कर दी, प्रॉफिट उससे बढ़ जाता, क्योंकि मैंने बताया नेट में क्रेडिट का मतलब फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब माइनस किया 12,000 को हमने क्या किया, करेक्ट रेशियो में क्रेडिट कर दिया जितना करना चाहिए था। उसके बाद लास्ट में हमको क्या काम करना है, दो मेन काम करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और जो प्रॉफिट लास्ट में पूरे प्रॉफिट को 24,600 को, न कि 12,000 को, पूरे प्रॉफिट को जो गलती से क्रेडिट हुआ था उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में जिसमें वो ऑलरेडी गलत रेशियो में हुआ था। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जब पीछे कई साल में मिस्टेक हो जाए। सपोज दैट पार्टनर्स ने 2 years 3 years पार्टनरशिप फॉर्म रन किया, उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। आफ्टर 2 and 3 years partners are getting information that they had not provided interest on capital, they had not provided salary to any partner in last 3 years, in last 2 years. So in that case how the effect will be neutralized, इसके बारे में देखेंगे। So now I am going to discuss the last topic of this current past adjustment question. Means it will be the last type of question in this past adjustment. What is that type? When omission occurs in more than 1 year. अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक सिर्फ 1 year की इन्फॉर्मेशन देखा कि लास्ट में ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट वाज इतना विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। कभी कभी हो सकता है कि मोर देन 1 years का प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हों और 2 साल के बाद 3 साल के बाद उनको पता लग रहा है कि प्रॉफिट तो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उस केस में हम उसको कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, इफ देयर आर 2 पार्टनर्स A and B, okay, their PSR was 3:2 and their profit, they earned profit of last 2 years, that means 31st March 2018 and 31st March 2019. ठीक है, this profit was rupees 60,000 and rupees 90,000. Okay, there were 2 partners, their PSR was 3:2. Okay, and they earned a profit in the last 2 years, that was 60,000 and 90,000. ठीक है, and at the end of means after providing or after distributing the profit on 31st March 2019, they got to know that they distributed profit equally. They wrongly distributed their profit equally in the last 2 years. ठीक है, PSR that was given 3:2, बट पता लग रहा है कि इक्वली इनको प्रोवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। 2019 में भी इक्वल प्रोवाइड किया गया, 2018 में भी इक्वल प्रोवाइड किया गया, बट 2019 का जब प्रोवाइड कर लिया गया, जब पार्टनर्स को पता लगा तो पार्टनर्स ने, जैसे मान लो इसमें पार्टनर ए को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, पार्टनर बी को 2 प्रोपोर्शन था, यानी उसका इन कंपेरेटिवली इट वाज मीन्स बी हैज टू गेट लोअर प्रॉफिट इन कंपेयर टू ए। अगर दोनों को इक्वल मिल जाएगा तो इक्वल मिलेगा तो उस केस में किसको एडवांटेज होगा, बी को एडवांटेज होगा, क्योंकि इसको कम मिलना था तो बराबर मिल जाएगा, ए को ज्यादा मिलना था तो ए को नहीं मिल पाएगा, ए को लॉस हो जाएगा। तो ए उस पर क्या करता है, ऑब्जेक्शन करता है। ए बोलेगा कि नहीं,
जो 90,000 और 60,000 का पिछले 2 साल का हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि मिलना चाहिए था 3:2 के रेशियो में, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन करेगा, ये कहेगा कि बी मान जाएगा। ठीक है, बी मान जाता है कि चलो ठीक है, हमारा रेशियो PSR यही था, तो हम आगे से अब यही क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना करके PSR अपने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये फिर से ऑब्जेक्शन करेगा, नहीं ठीक है, फ्यूचर में तो हम करेंगे, हमने मिस्टेक किया, फ्यूचर में हम 3:2 में करेंगे, हम पीछे भी जो प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं उस प्रॉफिट को भी सही से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसका मतलब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी पिछले साल का, इसी तरीके से लास्ट टू लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका भी एडवांटेज मुझे मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, फिर जो पीछे की जितने ईयर्स में मिस्टेक की गई होगी उन सारी मिस्टेक को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाएगा, और अगेन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और ये बिल्कुल बहुत सिंपल है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। जो प्रॉफिट यानी 60,000 और 90,000 टोटल मिला करके हम देखेंगे तो कितना हो गया, 1,50,000। 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हुआ है ना, क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अभी मैंने बताया था कि जो करेक्ट प्रोपोर्शन है, इसमें तो रिमेनिंग प्रॉफिट का केस बनता नहीं है, क्योंकि कुछ सैलरी कमीशन वगैरह देना नहीं था, देना होता तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालते। सीधे हम क्या करेंगे, जो पार्टनर का करेक्ट PSR है उसमें हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल ऐसे बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल लिखेंगे, ये A B टोटल। ठीक है, हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अप टू ईयर्स। ठीक है, प्रॉफिट अब इसको करेक्ट जो रेशियो का है 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। दोनों साल का एक ही रेशियो है। अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2018 के लिए रेशियो 3:2 दिया रहेगा, 2019 के लिए रेशियो 4:2 दिया रहेगा, तो उस केस में जो 18 का प्रॉफिट है वो 18 के करेक्ट PSR के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेंगे, और जो 19 का प्रॉफिट होगा वो 19 के करेक्ट PSR के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है 3:2 के रेशियो में। इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्रेडिट, और रेशियो हम इधर अंदर लिखते हैं, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिला, अब दोनों साल का रेशियो 3:2 है, तो एक साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हमको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट अप 2018, प्रॉफिट अप 2019, अगर दोनों साल का अलग रेशियो होगा तो। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही है, इसलिए हम दोनों एक साथ टोटल कर लेते हैं। 90 और 60 आ गया हमारा 1,50,000। 1,50,000 में से ए का कितना मिलेगा, 3/5, 2/5। ठीक है ना, तो 5 से टोटल डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आएगा 30,000। ठीक है, अब 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए को मिलेगा 90,000। ठीक है, इसी तरीके से 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। ये हमारा हो गया 1,50,000। क्या हुआ, जो प्रॉफिट था, जो गलत मतलब जो मिलना चाहिए था करेक्ट में, ठीक ना, वो दिया नहीं था, हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद जो यही प्रॉफिट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये क्या था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ना, ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जब इक्वल रेशियो में ऑलरेडी क्रेडिट किया जा चुका है, तो उसको क्या करेंगे, पूरे प्रॉफिट को उसी रेशियो में डेबिट कर देंगे पार्टनर्स को। तो लिखेंगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, जितना प्रॉफिट दिया गया था उसको वापस से डेबिट किया था, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड या डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल से डेबिट करेंगे। अब 1,50,000 को इक्वल हुआ था, इक्वल मीन्स दो पार्टनर है तो 1:1, 1/2, 1/2, तो इसको 1/2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 75,000। ये तो हमारा वही 1,50,000, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सीधे एक डेबिट एक क्रेडिट, हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट। ठीक है, नेट इफेक्ट। यहाँ 90,000, 75,000 क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है तो बैलेंस कितना आएगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 15,000। ठीक है, इसी तरीके से 60,000, 75,000, यहाँ क्या डेबिट बैलेंस बढ़ा आ गया, कितना, 15,000। 75 में से
60,000 गया, कितना हो गया 15,000। हमारा इफेक्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बीस कैपिटल आर करेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू एस कैपिटल आर करेंट अकाउंट। यानी बहुत सिंपल है कि अगर पिछले एक साल से ज्यादा ईयर में भी अगर मिस्टेक हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट्स को, ठीक है ना, जो कि करेक्ट रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था पहले क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद वो सारे प्रॉफिट जो गलत प्रोपोर्शन में डेबिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनको हम क्या करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में वापस से पूरे प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे, नेट इफेक्ट निकाल देंगे। बट समटाइम्स यू विल सी दैट इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, सॉरी इसमें कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स का ओमिशन नहीं था, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन ओमिट कर गए, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ प्रॉफिट का मिस्टेक था, प्रॉफिट को हमने ठीक कर दिया, जो सही देना था उसको क्रेडिट किया, जो गलती से हो गया था उसको डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक देखते हैं कि जिसमें प्रॉफिट्स मतलब दो अलग अलग साल के प्रॉफिट तो गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुए ही, साथ में दोनों साल के कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स भी ओमिट कर गए, ठीक है ना, दोनों साल के पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में से कुछ चीजें प्रोवाइड करना भूल गए और दोनों कंटिन्यूअस पिछले 2 से 3 साल के प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, बस ये कि इसमें एक से ज्यादा ईयर हो जाएंगे। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। Question number 46 and I am doing the last question for this chapter, for this topic. This is the second last topic, इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पे आएंगे, इसके बाद सारा होमवर्क होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, पहले क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जिनके पास बुक नहीं है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2018, their fixed capital stood at rupees. Their fixed capital, again fixed capital word use किया है, तो हम सारी एंट्री करंट अकाउंट से पास करेंगे। कह रहे their fixed capital stood at rupees 50,000, rupees 25,000, rupees 25,000. There are 3 partners, 50,000, 25,000, 25,000 capital. कह रहे as per provision of the partnership deed, A was entitled for a salary of rupees 5,000 per annum. ठीक है, ऑल द पार्टनर्स वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी इनका पीएसआर क्या बनेगा, इनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया है। प्रॉफिट्स वेर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसी तरीके से द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 ऑफ रुपीज 33,000 एंड 31 मार्च 2019 ऑफ रुपीज 45,000 वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स। यानी पिछले 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, और क्या बोल रहा है, बोथ प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इक्वली, इक्वल डिवाइड हो गया, जबकि पीएसआर ऊपर बोला था कि कैपिटल के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और कह रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स, अबव टर्म्स में यानी ये पार्टनर की सैलरी थी और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको प्रोवाइड किए बिना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी यहाँ पे अगेन वही सेम दोनों चीजें, एग्रीमेंट्स का ओमिशन भी है, प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, अभी हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें सिंगल ईयर का था, इसमें डबल ईयर का हो गया, 2 ईयर्स का कंसेक्यूटिव छूट गया हुआ है। कह रहा है पास जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इसके लिए भी बस एक क्वेश्चन का हाईलाइट लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 46, ठीक है, ABC। Their capital is 50,000, 25,000 and 25,000। पीएसआर बोला है कैपिटल के प्रोपोर्शन में, तो कैपिटल के प्रोपोर्शन में देखेंगे तो 30 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 25 से कट करेंगे, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, ठीक है ना, कट करके रेशियो बना लेंगे, 2:1:1 आ गया। इसी तरीके से प्रॉफिट जो दिया हुआ है, ठीक है ना, प्रॉफिट
31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। अब 18 का प्रॉफिट दैट इज 33,000 एंड 19 प्रॉफिट इज 45,000। अब इसके लिए क्या करेंगे, वही सेम एडजस्टमेंट टेबल। There are 3 partners, so 4 main column will be there. Okay, A, B, C and total. अब देखो पार्टनर ए वाज इंटाइटल फॉर ए सैलरी ऑफ 5,000 पर एनम। ए को जो सैलरी था 5,000 पर एनम की सैलरी मिलना था। तो 2 साल के अगर प्रॉफिट हमने विदाउट कंसिडरिंग द एग्रीमेंट, इफ 2 years प्रॉफिट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका मतलब कि 2 साल का एग्रीमेंट भी नहीं प्रोवाइड किया गया। तो जब ए को सैलरी 5,000 पर एनम है तो 2 years का सैलरी कितना हो जाएगा टोटल सैलरी, किसको है, ए को है। तो 5,000 अगर पर एनम है तो 2 years का क्या हो जाएगा, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का 5,000 है, 2 years का कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है ना। और किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिल रही है, टोटल हमारा 10,000। ठीक है। इसी तरीके से और क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, @5%। अच्छा, ये दोनों जिसके और ये भी क्रेडिट हो रहा है, सैलरी भी क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट करेंगे, दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट करना होगा। यहाँ पे 5% पर एनम दिया हुआ है। तो देखो अब एक चीज और है, यहाँ पे क्या दिया, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। क्या हुआ दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल। यानी जो 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, मैंने बताया था कि प्रॉफिट्स आर एडेड टू द कैपिटल अमाउंट। तो इनका 50,000 का कैपिटल था, तो 33,000 प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा पार्टनर्स को, उससे उनका कैपिटल बढ़ गया होगा और नेक्स्ट ईयर में उनका कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा कैपिटल हो जाएगा। तो इसीलिए जब नेक्स्ट ईयर में हम 5% का निकालेंगे, यानी 2019 मार्च 19 में आएंगे, तो जब 5% का कैलकुलेशन करेंगे, जनरल टर्म पे अगर कुछ नहीं बोलता तो हम 50,000 में से इस पार्टिकुलर पार्टनर का जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ऐड करते, नई कैपिटल जो बनती है उस पे हम 5% निकालते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोला फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो कैपिटल उनकी पिछले साल में थी, मतलब वही करंट ईयर में भी है, या जो 18 में थी, मार्च 18 पे जो कैपिटल थी वही मार्च 19 में भी कैपिटल है। क्यों, क्योंकि मार्च 18 का सारा बेनिफिट कहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया गया होगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया होगा। फिक्स्ड कैपिटल होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या चीज रिकॉर्ड होती है, सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, वहीं पे क्लोजिंग बैलेंस। अगर फर्दर कैपिटल होती है तो उसको ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा कोई फर्दर कैपिटल नहीं है। तो जो कैपिटल 50,000 की एडिशनल मार्च 18 में थी वही मार्च 19 में भी थी। तो दोनों ईयर का जो 5% निकालेंगे वो 50,000 पे, 25,000 पे, 25,000 पे। तो जब हम 5,000 निकाल रहे हैं, सॉरी 5% निकाल रहे हैं, तो वन ईयर का हमारा आएगा 2,500। तो 2,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साल के लिए, तो कितना आ जाएगा 5,000। इसी तरीके से इसका निकालेंगे तो हमारा 5% निकालेंगे तो हमारा आएगा 1250। 1250 को चूंकि 2 years का प्रोवाइड करना है, इसलिए 1250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,500। सेम इसका भी कैपिटल है 2,500, 5,000 और ये 2 कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है। टोटल क्रेडिट, डेबिट करने वाला कुछ बोले नहीं है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 क्रेडिट हो गया, इसको लिखेंगे टोटल क्रेडिट। एक मिनट, अभी ध्यान से देखेंगे, टोटल क्रेडिट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ और क्रेडिट करना रह गया है। क्या है, अभी और क्रेडिट करना रह गया है। क्या रह गया है, मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग प्रोपोर्शन में होता है
तो वहां क्या निकलता है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकलता है, और रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल करके हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स की करेक्ट पीएसआर में क्रेडिट कर देते हैं। तो टोटल अगर हम प्रॉफिट देखें, दोनों साल का प्रॉफिट मिला करके, यानी बोथ ईयर्स प्रॉफिट ऑफ वाज रुपीज 78,000। 78,000 में से टोटल क्रेडिट दोनों साल का मिला करके 10,000 सैलरी के फॉर्म में, 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, यानी 2 ईयर्स का हमने एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 2 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट 78,000 में से 2 ईयर्स का जो टोटल एक्सपेंस देना था कितना था, 20,000। मैंने बताया था जितना क्रेडिट होता है उतना क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। जब लेस करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 58,000। अब 58,000 ये हमारा क्या आ गया, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट में से जो भी चीजें प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करने के बाद बचेगा प्रॉफिट 58,000, क्या करेंगे, उनके करेक्ट पीएसआर में क्रेडिट कर देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट लिख लो इसको, रिमेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगेन ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। किस रेशियो में, रेशियो यहाँ पे लेंगे 2:1:1, ठीक है। यानी इसको क्या करेंगे, 2/4 1/4, तो 4 टोटल जो बन रहा है 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 58,000/4, ठीक है। 14,500 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है बी और सी के लिए, तो यही हो जाएगा 14,500, 14,500, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा ए का। तो 14 2 जा 28, 500 29,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29,000, और ये टोटल हमारा जो प्रॉफिट 58,000 था, 58,000 हो गया, ठीक है। अब हमारा ये और कुछ क्रेडिट करना बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट को टोटल करेंगे, टोटल क्रेडिट, यानी इतना टोटल पैसा पार्टनर्स को देना था। और ये हमारा हो गया 17,000, ये हमारा टोटल वही प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 20,000 तो दे दिया, 58,000 रिमेनिंग बचा, तो टोटल हमारा 78,000 का प्रॉफिट था, आ गया। अब मैंने लास्ट स्टेप इसमें क्या बताया, रिमेनिंग प्रॉफिट तो हमने करेक्ट में दे दिया। अब जो प्रॉफिट टोटल रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वापिस से उसको क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट को डिविड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस रेशियो में, इक्वल। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि इक्वल प्रोवाइड किया गया था, किस रेशियो में बढ़ गया था, हाँ, इट वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग। तो इक्वल का मतलब कि 3 पार्टनर थे, 1:1:1, ठीक है। टोटल प्रॉफिट 78,000 था, 78,000 टोटल को 3 से पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 26,000, सब कुछ चला जाएगा 26,000 एंड 26,000, ये तो हमारा टोटल वही बढ़ गया है, 78,000 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, ठीक है, नेट इफेक्ट। यहाँ पे क्रेडिट में 44, डेबिट में 26, तो बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट, ठीक है। 0 कितना, 18,000, ठीक। यहाँ पे 17, यहाँ पे 26, तो यहाँ पे तो डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। ये हमारा आएगा 0 0 0, ये हमारा 9,000, अगेन 17,000 26,000, डेबिट बैलेंस आएगा, सेम होगा 9,000। दैट मीन्स अब यहाँ पे इफेक्ट क्या आया, बी और सी का डेबिट आ रहा है 9,000, ए का क्रेडिट आ रहा है 18,000,
ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, देखो आंसर मैच करते हैं, ठीक है। बी एंड सी अकाउंट डेबिट 9000 एंड ए का अकाउंट जो रहा है 18000। अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है तो जनरल एंट्री किससे करेंगे, करंट अकाउंट से। तो एंट्री पास करेंगे, बीस करंट अकाउंट डेबिट 9000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 9000 टू एज करंट अकाउंट, कितना टोटल 18000, ठीक है। ये हमारा यानी सेम वही चीजें हैं, सिर्फ हमने क्या किया, सैलरी 2 साल का भूल गए थे तो 2 साल का हमने सैलरी प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट 2 साल का भूले थे तो इंटरेस्ट 2 साल का हमने ऐड करके टोटल प्रोवाइड किया, और दोनों साल के प्रॉफिट में से जो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा था उस प्रॉफिट को हमने करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और दोनों साल का प्रॉफिट जो रॉन्ग प्रोपोर्शन में इक्वल में ऑलरेडी क्रेडिट था उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब आज की वीडियो में इतना ही, ये हमारा टॉपिक यही क्लोज हुआ। अब जो भी डाउट होगा आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो वो डाउट क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।